Hello student, good afternoon one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 3, chapter 6, properties of matter. Yesterday we have discussed about the different modulus of elasticity like Young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. Young modulus is corresponding to change in length, bulk modulus corresponding to change in volume and modulus of rigidity corresponding to change in shape. Okay, so today we are going to discuss about the Poisson ratio, right? So let us make a statement of Poisson's ratio. Before making a statement, let me explain some let me show some demonstration about this. Okay, see, suppose I have the wire, right, which can extend it, which can stretch. Okay, so suppose if I am taking this wire and this wire is suspended at a fixed end, top end, and at the another end, free end, if I apply the load, right, in terms of 500 gram, 1 kg, 1.5, like that, if I apply the load at the bottom end of this wire, so what will happen? This is the original length of the wire is capital L. Okay, so when I apply the load, apply the stress, and especially longitudinal stress, due to which there will be change in length. Okay, suppose this is the initial length of wire, capital L, and after applying stress it become this much. Okay, so actually what happened, whatever the diameter of this wire, the diameter will change. If there is an increase in length of wire, so diameter will decrease in case of stretching of wire. But suppose if we compress this wire, or if you take a rod like this, suppose a rod है, राइट, ये रॉड को मैंने कॉम्प्रेस किया से, तो क्या होगा, इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर बढ़ेगा, ओके, और लेंथ कम होगी. उल्टा होता है, ये केस में क्या होगा, डायमीटर कम होगा और लेंथ बढ़ेगी. दिस इज व्हाट हैपन. ओके, सो लेट अस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ओके, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन वी विल मेक अ स्टेटमेंट ऑफ पॉइसन रेशियो. सपोज दिस इज द वायर, metallic wire, okay, this is the original diameter. This diameter is, suppose let this diameter is capital D. Okay, और इसका जो radius होगा, that radius will be, I am taking this capital R. After stretching it, अगर मैं इसको stretch किया, okay, तो क्या होगा, थोड़ा अलग पेन से दिखाता हूँ. After stretching it, there will be change in length. So length will increase because one end of the wire is fixed. So this is the extension produced in the wire. When this end is fixed, to this end we are applying force. इधर force लगा है. Okay, force is applied in the direction in terms of stress. That is the, what kind of stress it is, which is corresponding to change in length of the wire. Yesterday we discussed, we called it longitudinal stress. Okay, तो ये जो diameter होगा, this diameter will be small d, change in diameter. Okay, तो यहाँ पे जो भी diameter होगा, change in diameter I am taking here. Let this diameter something else, कुछ अलग ही लेंगे इसको, क्योंकि जो change in diameter होगा, मतलब यहाँ पे जो change हुआ है, right, so that change in diameter is small d, दोनों मिला के. Okay, यहाँ पे मैं आर लेता हूँ, ये भी आर लेता हूँ, राइट, तो दोनों मिला के जो होगा, दैट विल बी 2r इज इक्वल टू स्मॉल डी एंड 2r इज इक्वल टू कैपिटल डी. सो कीप इन माइंड, राइट, तो ये फाइनल डायमीटर है, बट चेंज इन डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी. दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं. सो व्हेन वी अप्लाई दी फोर्स इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, take a metallic wire, fixed at one end, and another end is free, okay, यहाँ पे जो extension wire है, that is small l. This is the original length of the wire, capital L. So apply
stress in terms of load to the free end of wire, to the free end of wire. So what will happen? There will be extension produced in the wire. So there is change in wire, change in length of wire, that is increase in length, but at the same time there is a decrease in diameter, of wire, that is change in dimension, perpendicular to the cross section of wire. Change in diameter is perpendicular, change in dimension perpendicular to the cross section of wire. Okay, so let initial length of wire, capital L, change in length small l, small l, initial diameter of wire, capital D, and change in diameter, small d. So Poisson ratio can be stated as, now let us see the statement of Poisson ratio. Statement of Poisson ratio is that the ratio of lateral strain, that is the along the diameter, this right, strain changes, the change in dimension along the diameter or perpendicular to the cross section of this wire, that is called as lateral strain, to the longitudinal stress, but this is within elastic limit, Yesterday we discussed about the Hooke's law, right? Hooke's law stated that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Okay, so but this is within elastic limit. Okay, अभी ये हो गया when we are stretching the wire, वायर को जब stretch करते तब. Now when we compress the wire, तब क्या होगा? Okay, उसका diagram will be like this. When we compress the wire, so this is the initial state of the wire. This is initial length of the wire is capital L. Diameter is capital D. Now when we compress the wire, so there is a decrease in length but increase in diameter. Okay, so it will be like this. Because one end is fixed, right? So we will just apply the force on one side. So there is increase in diameter. So this is what final diameter, right? But जो change in diameter हुआ यहाँ पे, the change in diameter is small d. Okay, so I will take this part will be the radius r. This is radius r, and change in diameter is small d. Okay, and change in length is L minus delta L. Okay, or L minus small l.
So this will be, this length will be, this length will be L minus small l, और ये जो है this is small l, change in length. Okay, so here the initial length, same parameters are there. So now let us derive the expression for Poisson ratio. The Poisson ratio is, which is represented by the constant, okay, that Poisson ratio represented by symbol sigma. So sigma is equal to lateral strain divided by longitudinal strain Now let us derive the expression for lateral strain. अभी lateral strain का expression find करेंगे. So lateral strain can be defined as, lateral strain is defined as, that is change in length or change in dimension along the, sorry lateral है ना, change in dimension perpendicular to the cross section of the wire. अभी यहाँ पे जो ये क्रॉस सेक्शन है इसमें जो चेंज हो रहा है, डायमीटर में जो चेंज हो रहा है, दैट विल बी द लैटरल. और अलॉन्ग द लेंथ अगर हो रहा है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर, सो दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना और गड़बड़ मत करना. ओके, सो लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन, or you can say change in diameter, best way, change in diameter divided by original diameter. That is the change in dimension perpendicular to the cross section of the wire. Okay, so change in diameter we have taken small d and original diameter is capital D. So this is the lateral strain. Now let's write the expression for longitudinal strain. Longitudinal strain is change in length. This, what is the length is changed for the wire after applying the stress in the along the length. Okay, so there is a change in length upon original length so change in length is small d, small l, and original length is capital L. Okay, now to find the Poisson ratio, sigma is equal to lateral strain upon longitudinal strain. Lateral strain is small d upon capital D divided by small l upon capital L. It can be written as small d upon capital D into small capital L upon small l. This is the expression. Okay, it is the ratio of same quantity, so it has no units. Okay, so Poisson ratio has no unit, no dimension. Okay, sigma has no unit and no dimension. Right, its value usually lies between, okay, 0 to 0.5, okay, but mostly the value is 0.25 to 0.35. okay, तो ये mostly ये होता है positive value, right? So 0 to 0.5, sigma lies between 0 to 0.5. So just take a screenshot. Actually, most commonly used metals, the value of sigma Poisson ratio lies between 0.25 to 0.35. Okay, and we also assume in previous case that when the wire is stretched, okay, the volume of the wire remains constant, but there is a condition. If the Poisson ratio is 0.5, if value of sigma
value of sigma is equal to 0.5. Okay, then it is assumed that the volume of wire remains constant after stretching. Volume of wire remains constant after stretching. But if the value is like this, 0.2, 0.25, 0.35, this value is very much less than 0.5, and hence when the metal having this Poisson ratio, if it is stretched long, okay, then its volume will change, volume will increase, right? Okay, but practically value of sigma is very less comparable to or compared to 0.5, hence volume of wire increases. While stretching. सपोज वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल अगर आपको मेंशन किया होगा कि वॉल्यूम चेंजेस, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना है. अदरवाइज वाइल फाइंडिंग द यंग मॉड्यूलस एंड ऑल एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर, यू हैव टू टेक दैट द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या लगा, एरिया इंटू लेंथ. ओके, अभी मान लो इसका अगर एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर और इसका जो लेंथ होगा एल, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस रॉड विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एल. वॉल्यूम ऑफ द rod or length of wire can be taken as pi r square into small l, this volume. Okay, चलो अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते. So once again let me explain you the Poisson ratio. Poisson ratio is the within elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain or linear strain. Longitudinal strain को दूसरा नाम क्या है, linear strain. Sorry, do the correction here. It is strain. Okay, lateral strain. Ratio of lateral strain to the longitudinal strain. But this is within elastic limit only. Okay, यहाँ पे बराबर लिखा है. Okay, so take a screenshot. Okay, let us solve the first numerical, which is unsolved in the textbook, page number 113, question 5, 10, 10 number का numerical है. A telephone wire 125 meter long and 1 millimeter in radius is stretched to a length 125.5 when a force of 800 Newton is applied. What is the value of Young modulus for the material of the wire? Okay, so here we have to write first the given value. As already I told that while solving numerical, right, in physics, you have to follow the some steps, 6 to 7 steps while solving the numerical. Okay, तो पहला steps क्या है बच्चों? तो first step is given value, given या solution जो भी दिया है, right? यहाँ पे क्या क्या दिया है? Length of the wire is given, that is capital L is given, length of wire, okay, which is 125 meter. So take initial length of wire L1, right? Then the final length of wire L2. This is the initial length. And after stretching, final length of wire is equal to 125.25 meter. Then radius is given small r is equal to, okay, which is 1 millimeter. So that is 1 millimeter. Now see, millimeter is neither SI nor CGS. Okay, it is a smaller unit. So we need to convert into SI system because this is meter SI unit है. तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो. This can be written as 1 into 10⁻³ meter. Okay,
उसके बाद फोर्स लगा है एफ इज इक्वल टू है 800 न्यूटन एंड दे हैज टू फाइंड कैपिटल वाई मॉडुलस, दैट इज क्वेश्चन मार्क, टू फाइंड इज कैपिटल वाई। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला इज, बच्चे क्या करते हैं इतने घाई में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, दे डोंट राइट फॉर्मूला, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। और क्या सब्स्टिट्यूट किया, किसमें सब्स्टिट्यूट किया, कुछ नहीं। ओके तो ऐसा मत करो। तो फॉर्मूला लिखो y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके, अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। सो दिस कैन बी रिटन एज फोर्स, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, एरिया डायरेक्ट दिया नहीं है, आपको रेडियस दिया है, बट वायर इज इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, वायर इज सिलेंड्रिकल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा उसका। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कैन बी टेकन एज पाई आर स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल, ऊपर जाएगा, स्मॉल एल नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे स्मॉल एल दिया नहीं, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ, ओके, चेंज इन लेंथ that is small l is equal to final length minus initial length, so 125.25 minus 125, so the change in length small l or delta l, आपके नोट्स में डेल्टा एल होगा, डजेंट मैटर, एल और डेल्टा एल बोथ आर सेम। तो यहाँ पे आएगा 0.25 मीटर इज द चेंज इन लेंथ, दिस यू हैव टू टेक। ओके तो चलो अभी सब्स्टिट्यूट करते। तो y इज इक्वल टू 4 दिया है 800 इंटू ओरिजिनल 125 एंड 3.14 इंटू रेडियस दिया है 10⁻³ होल ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ 25 मीटर। तो दिस कैन बी रिटन एज, देखो बच्चों यहाँ पे जब भी सॉल्व करोगे आप तो क्या करो कि 10 के पावर पास में लिख लो। अभी ये 800 इंटू 125, तो 125 का 8 क्या होता है 1000, और ये 2 जीरो, मतलब दिस विल बी 10⁵ आ जाएगा, 1000 इंटू 100। ओके सो 3.14 इंटू इसका 10⁻⁶ आएगा और इधर 10⁻², तो 10⁸ आएगा, -8 आएगा इंटू 25। ओके तो यहाँ पे 25 1 जा 25, 4 जा कर लो, इजी टू सॉल्व। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10⁻³ इंटू ये जो 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 3.14 तो y is equal to 4 upon 3.14 will be something 1.27 into 10⁻11 Newton per meter square. This is the answer. Or after getting the answer you have to make it rectangular box without fail. Okay, so इसका screenshot ले लो। Let's solve the second numerical, which is question 5, 7 unsolved from the textbook. ओके टेक्स्ट के सब सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल हम क्लास में लेंगे, और जो बाकी मैं असाइनमेंट दूंगा तो वो आपको सॉल्व करना है और सबमिट ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर, it is 1.5 meter and diameter 0.6 millimeter get extended by 6.3 millimeter when a certain force is applied. Okay, so here the Young modulus is given, how much force needed to extend the wire by 6.3 millimeter. ये extension produce है। तो सबसे पहले यहाँ पे given लिख लेते हैं, what are the given quantities. तो let us write given is equal to the length of the mild steel wire L steel is equal to 1.5 मीटर विच इज ऐसा यूनिट, वही कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायमीटर दिया है तो डायमीटर इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर, वन एंड सेम राइट, 60 मिलीमीटर. So this can be written as
6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, और एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर स्मॉल एल इन द स्टील वायर इज इक्वल टू 6.3 millimeter. This is also not SI unit or not CGS unit. You need to convert into meter. So 6.3 into 10⁻⁻3 which is equal to 63 into 10⁻⁻4 मीटर. हमेशा क्या करने का, डेसिमल को हटा देने का. जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना, अगर आपको कैलकुलेशन सिंपलर बनाना है तो क्या करो बच्चों, वॉट एवर द डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आर गिवन, ट्राई टू राइट इनटू होल नंबर. अभी तो क्या गया 6.3 है, हमको 6.3 का टेबल थोड़ी पता है, राइट. तो यहाँ पे क्या करने का, 63 इंटू एक 10 का पावर बढ़ जाएगा, -1 बढ़ जाएगा. ओके, देन यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील दिया है, स्टील इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फाइन. अभी हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड फोर्स अप्लाइड, टू फाइंड फोर्स अप्लाइड. बराबर. देन फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला यहीं पे लिख लेता हूँ, जगह काम है. फॉर्मूला इज इक्वल टू y इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपॉन एरिया इंटू स्मॉल एल. फाइन. तो लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल Y दिया है, एरिया नहीं दिया, लेकिन एरिया फाइंड कर सकते हैं रेडियस अगर दिया है तो. ओके, तो पाई आर स्क्वायर, लेंथ दिया है, कैपिटल L दिया है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर दिया है, F निकालना है. अभी यहाँ पे हमको निकालना है रेडियस निकालना पड़ेगा. ओके, तो इफ कैपिटल D इज 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर is the diameter, then radius will be 3 into 10⁻⁻4. Okay, so let's find the area. Area will be pi r square. That we will directly substitute in the formula. Okay, अभी देखो यहाँ पे क्या करने का, बच्चे क्या करते हैं, y को यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ऐसा मत करो. सी, आपको निकालना क्या है, फोर्स अप्लाइड, तो मेक F एज अ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या करना है, फोर्स को सब्जेक्ट बनाना है, एंड देन वी हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो कैपिटल F इज इक्वल टू, कैपिटल F इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल Y यंग मॉड्यूलस इंटू एरिया इंटू एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर डिवाइड बाय टोटल लेंथ. तो यहाँ पे आएगा कैपिटल Y इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया डायरेक्ट नहीं दिया है तो आपको फॉर्मूला लिखना है पाई आर स्क्वायर इंटू एक्सटेंशन प्रोड्यूस स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल L. दिस इज इक्वल टू F. अभी सब्स्टिट्यूट करने का. ओके, सो F इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस 2.1 10⁻11 फॉर स्टील इंटू पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस दिया है, हमने निकाला रेडियस 3 इंटू 10⁻⁻4, उसका स्क्वायर आएगा. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. 9 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, क्योंकि दोनों पूरा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. 3 का भी स्क्वायर करना है और 10⁻⁻4 का भी स्क्वायर करना है. बच्चे क्या करते हैं, खाली इसका स्क्वायर करते हैं और 10⁻⁻4 का पावर भूल जाते हैं. ऐसा मत करो. ओके, इंटू एक्सटेंशन प्रोड्यूस स्मॉल एल हमने लिखा है 63 इंटू 10⁻⁻4, 63 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. ओके, दैट इज 1.5. 1.5 को भी ऐसे लिखो, 15 इंटू 10⁻⁻1. ओके, या फिर इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि ये डायरेक्ट 6 से डिवाइड हो जाएगा 1.5. सो 15 6 जा 90, तो इसको डायरेक्ट कट कर दो यहाँ पे. 15 1 जा 15, 15 6 जा, क्योंकि इसको 90 बना दिया, 90/15 तो 6 टाइम्स होता है. अभी बहुत सिंपल है. अभी जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन. F इज इक्वल टू जो डेसिमल है उसको पास में लाने का. ओके, जो न्यूमेरल है न्यूमेरल को पास में लाने का. तो क्या आएगा बच्चों, 2.1 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 6. ओके, एंड इंटू 10⁻10 पावर क्या आएगा, ये 6 ले लिया, हाँ दोनों ले लिया. अभी 10 का पावर आएगा 10⁻11 इंटू 10⁻−8 और -4 कितना होता है, -12.
तो ये पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा f इज इक्वल टू, यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 249.2532. जस्ट चेक इट प्रॉपरली, चेक कर लो आप लॉग टेबल से. ओके, इंश्योर द वैल्यू इज करेक्ट और नॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay student, now the third numerical, which is textbook unsolved numerical, question number 5, 4, maybe page number 113 होगा इसका या 112 होगा, doesn't matter, 113 page number. Let's see the numerical. A wire gets stretched by 4 millimeter. Stretching कितना हुआ है? Extension produced in the wire is 4 millimeter due to a certain load. कुछ load लगा है. If the same load is applied to a wire of same material, इसका मीनिंग क्या होता है? सेम मटेरियल मतलब बोथ दी वायर ऑफ मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम एंग मॉडुलस. दोनों वायर का एंग मॉडुलस सेम है. विद हाफ द लेंथ एंड डबल द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ. तो सेकेंड जो वायर दिया है, दो वायर दिया यहाँ पे, राइट. ये पहला वायर है, फर्स्ट वायर, और सेकेंड वायर जो है हाफ द लेंथ एंड डबल द डायमीटर. तो इसका लेंथ बढ़ा देते पहले का, तो पहले का लेंथ ज़्यादा होगा. ओके, और जो सेकंड वायर है उसका लेंथ हाफ है, इट विल बी, और डायमीटर डबल कर दिया, डबल द डायमीटर. ओके, सो हियर दिस डायमीटर D1, इसका डायमीटर D2, तो रेडियस क्या आएगा? दिस विल बी 2 times R2, इसका रेडियस आएगा 2 times R1. ओके, सो D2 इज इक्वल टू क्या है? D2 इज इक्वल टू डबल द डायमीटर मतलब 2 times D1. ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस विल बी डबल. ओके, 2 times D1 हो जाएगा. देन हाफ द लेंथ, तो लेट अस द गिवन क्वांटिटी, गिवन वैल्यूज आर. तो पहले एक्सटेंशन कितना है? स्मॉल L1 इज 4 millimeter, विच इज 4 into 10⁻³ मीटर. सेम लोड इज अप्लाइड, दैट इज F1 इज इक्वल टू F2. यहाँ पे कंडीशन दिया है, सेम फोर्स अप्लाइड. वायर ऑफ सेम मटेरियल, तो Y1 इज इक्वल टू Y2 दिया है. और जो सेकेंड वायर है उसका लेंथ हाफ है, तो L2 इज इक्वल टू L1/2, हाफ द लेंथ. ओके, और डायमीटर जो है D2 इज डबल द डायमीटर, तो D2 इज इक्वल टू 2 times D1. ओके, 2 times D1. व्हाट विल द चेंज इन इट्स लेंथ? तो L2 कितना होगा? दे हैज टू फाइंड L2. तो हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू f, y1 लेते, y1 F1 इंटू L1 डिवाइड बाय एरिया A1 इंटू एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर L1. और y2 क्या आएगा? y2 इज इक्वल टू F2 इंटू L2 डिवाइड बाय A2 इंटू स्मॉल L2. तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड और एक मॉड्यूलस सेम है, राइट. तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर लेते. बाय इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस वी कैन राइट F1 इंटू L1 डिवाइड बाय एरिया लेकिन πr² आएगा, एरिया इन टर्म्स ऑफ πr1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल L1, विच इज इक्वल टू F2 इंटू L2 डिवाइड बाय πr2 स्क्वायर इंटू स्मॉल L2. यहाँ पे फोर्स सेम है तो ये कट हो जाएगा. दिस विल बी ओके, कट कर देता हूँ मैं इसको. F1 F2 विल बी कट, सो रिजल्टिंग वैल्यू विल बी, दिस कैन बी रिटन एज L1 अपॉन L2 इंटू, इधर लेके आए और L1 को इधर लेके आते. हमको निकालना क्या? L2 निकाला ना. तो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर L2. L2 का फॉर्मूला बनाते.
L2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आना है और L1 को इधर आएगा, तो L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाइड बाय ये पाई आर वन स्क्वायर, पाई कट हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, L1 इधर आ जाएगा इंटू L1। ओके, ये मैंने यहाँ पे L2 को सब्जेक्ट बना दिया है भाई। अभी यहाँ पे देखते हैं L2 इज इक्वल टू L1 अपॉन 2, तो क्या हमको क्या चाहिए, L2 बाई L1 चाहिए, तो L1 को इधर लेके आओ, तो L2 अपॉन L1 कैन बी रिटन एज 1/2, और वहाँ पे क्या है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो R1 अपॉन R2 लेना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे रेशियो बनाना पड़ेगा हमको। अभी डायमीटर कितना दिया है, D1 सो R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1। अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल आएगी, तो R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1, तो R1 अपॉन R2, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, 1/2, दिस विल बी 1/2। ओके, तो यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूट कर दें, L2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन R2 इज 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L1 को वैसे ही रखते फॉर द मोमेंट। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द सेकेंड वायर, L2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल L1। ओके, तो L1 दिया है शायद 4 मिलीमीटर, तो L1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 10⁻³ मीटर, तो 4 कट हो जाएगा, सो दिस विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ so this can be written as 5 into 10⁻⁴ meter is the extension produced in the second wire. Okay, so let's check the answer. Yes, so which is 0.5 millimeter, it is 0.5 millimeter, it can be written as 0.5 millimeter. So just take a screenshot. Okay student, third numerical or fourth, whatever it is, a composite wire, composite मतलब combined wire is prepared by joining a tungsten wire and steel wire end to end. Both the wires are of the same length, मतलब दोनों का length same है, and same area of cross section. Okay, if this composite wire is suspended to a rigid support and force applied to its free end to get extended by 3.25 millimeter. Calculate the increase in length of tungsten and steel wire separately. The Young modulus for tungsten and steel is given. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते, गिवन वैल्यू लिख लेते। ओके, सो गिवन क्वांटिटीज आर, तो 3.25 मीटर क्या दिया यहाँ पे, 3.25 मीटर जो एक्सटेंशन दिया है, दिस एक्सटेंशन इज, पहले इसका देखो डायग्राम कैसे होगा। सपोज यहाँ पे सीलिंग है, सस्पेंशन पॉइंट है, एंड आई विल टेक फर्स्ट टंगस्टन वायर, दिस इज टंगस्टन वायर। ओके, इसका लेंथ कितना है L1, और L ले लेते इसका जो भी है। ओके, L1 लेते, एंड दिस वायर, दिस इज टंगस्टन, this is steel. Okay, same diameter, A1 is equal to ET, area of cross section of both the wire are same. Force applied here, यहाँ पे फोर्स भी वही रहेगा, F1 is equal to F2 is equal to F. ओके, एक ही फोर्स लगा है, और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस है यहाँ पे, टोटल जो एक्सटेंशन हुआ है, दिस एक्सटेंशन विल बी, यहाँ पे what are the extension takes place, right? So this extension is LS plus LT, which is equal to 3.25 millimeter. 3.25 millimeter.
ओके, तो ये डायग्राम आपको अगर आ गया तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एल एस स्टील वायर एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्टील वायर प्लस एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द टंगस्टन वायर विच इज इक्वल टू 3.25 मिलीमीटर। हमको निकालना है एल एस एंड एल टी। टू फाइंड एल एस क्वेश्चन मार्क एल टी क्वेश्चन मार्क। ओके, वायर अलग अलग है लेकिन जो फोर्स वगैरह है, फोर्स एक ही है, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ प्रोसेशन सेम है। तो चलो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। y1 इज इक्वल टू F1 इंटू L1 डिवाइड बाय एरिया A1 इंटू स्मॉल एल एल एस। और यहाँ पे स्टील ले लेते, स्टील के लिए बनाते। एल एस विल बी सेम, एरिया अलग होगा, एरिया भी सेम है, सिर्फ एक्सटेंशन प्रोड्यूस अलग है, फोर्स भी सेम है, सेम फोर्स आएगा। एंड वाई टी इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइड बाय एरिया इंटू एल टी। ओके, तो अगर यहाँ पे वाई टी अपॉन वाई एस लिया, वाई टी अपॉन वाई एस लिया तो क्या आएगा? वाई टी का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू एल टी डिवाइड बाय, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाइड विथ रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा एरिया इंटू एल एस डिवाइड बाय एफ इंटू कैपिटल एल। यहाँ पे हमने ऐसा रेशियो क्यों लिया? क्योंकि हमको वाई टी और वाई एस दिया है, राइट। फोर्स सेम है तो कट हो जाएगा, एरिया भी सेम है कट हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर दोनों का सेम है, कट हो गया। तो वाई टी वाई एस, वाई टी इंग मॉड्यूलस ऑफ टंगस्टन वायर डिवाइड बाय इंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर विच इज इक्वल टू एल एस अपॉन एल टी, एल टी। ओके, तो हमको निकालना है एल एस अपॉन एल टी। एल एस अपॉन एल टी will be yt upon ys। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा दिया है? ठीक है, yt ज़्यादा दिया है तो yt को पहले ले लेते हैं। सो दिस कैन बी टेन 4.1 डिवाइड बाय इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻11। तो कितना आएगा ये? दिस विल बी 10⁻11 कट हो जाएगा, तो इसको ले लेते 2.05 विद आंसर। ओके, तो एल एस इज इक्वल टू एल टी मल्टीप्लाइड बाय 2.05। ओके, बट एल एस प्लस एल टी दिया है 3.25 मिलीमीटर। तो चलो एल एस का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। सो एल टी इज इक्वल एल टी प्लस एल टी इंटू पुट द वैल्यू ऑफ एल एस ईयर, तो एल टी इंटू 2.05 प्लस एल टी विच इज इक्वल टू 3.25। तो यहाँ पे एल टी ले लेते 2.05 प्लस 1 3.25। So you will get LT is equal to 3.25 डिवाइड बाय, ये कितना आएगा? 3.05। सो इसको लॉग टेबल से सॉल्व करो। सो एल इज इक्वल टू एल टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 325 माइनस लॉग ऑफ
305। इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर, यू विल गेट द 1.064 मिलीमीटर LT, राइट। हमको अभी LS निकालना है, बट LS प्लस LT इज इक्वल टू 3.25, तो LS इज इक्वल टू 3.25 माइनस LT विच इज इक्वल टू 3.25 माइनस 1.064, तो LS का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, LS इज इक्वल टू, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ LS 2.185, जस्ट सब्ट्रैक्शन करो, पंद्रह में से 7 गए, अच्छा 3 8 कैरी 1 2.186। So these are the extension produced in the wire, tungsten wire and steel wire। तो स्टील वायर में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसका एक मॉड्यूलस कम है, 2 है, और टंगस्टन वायर का एक मॉड्यूलस ज़्यादा है, इसलिए उसका एक्सटेंशन कम होगा। सो मोर दी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो लेसर दी एक्सटेंशन प्रोड्यूस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो बराबर है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 5 9 न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 113, अनसॉल्व टेक्स्ट बुक अनसॉल्व न्यूमेरिकल। Okay, a steel wire having cross sectional area, so let's write the first given area of cross section, area of cross section of the wire is equal to 1.25 1.2 millimeter square। ओके, लेकिन मिलीमीटर स्क्वायर इज नाइदर SI नॉट CGS यूनिट, तो हमको उसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.2 इंटू 10⁻1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। यहाँ पे स्क्वायर है तो 10⁻³ का स्क्वायर आएगा, सो इट कैन बी रिटन एज 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर मत करो, ओनली यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस 10 का पावर। ओके, सो टेक केयर, नहीं तो बस दोनों कर देंगे। द स्ट्रेच बाय फोर्स ऑफ, फोर्स दिया है, फोर्स F इज इक्वल टू 120 न्यूटन, फोर्स अप्लाइड। इफ लैटरल स्ट्रेन इज, लैटरल स्ट्रेन दिया है, लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1.455 10⁻⁻4। इट इज, उसको यूनिट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, इज प्रोड्यूस इन इट। कैलकुलेट द पॉइसन रेशियो टू फाइंड पॉइसन रेशियो सिग्मा क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड यंग मॉड्यूलस दिया है स्टील का, यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील वायर इज कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻11 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वन एंड द सेम। तो यहाँ पे अगर सिग्मा निकालना है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके, ये फॉर्मूला है। और लेकिन लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन कैसे निकालोगे? सी देयर इज वन फॉर्मूला, y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो भी दिया नहीं, वो भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट. दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फोर्स अपॉन एरिया. ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू longitudinal strain is equal to longitudinal stress force upon area डिवाइड बाय यंग मॉडुलस. ये इधर आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज एफ अपॉन ए इंटू वाई, राइट. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू फोर्स दिया है 120 न्यूटन, एरिया भी दिया है 1.2 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11. तो चलो अभी ये कितना आ गया, इसको 0 बढ़ा दिया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा. सो 12 1 जा 12, 100 जा. ओके, तो 100 मतलब 10⁻2 डिवाइड बाय 2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये -6 रहेगा यहाँ पे. एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते पहले. 10⁻6 प्लस 11 5 प्लस 5 ऊपर जाएगा वो. So longitudinal strain will be 0.5 into 10⁻⁻3. Okay, this is what the longitudinal strain. Yes, okay, so 0.5 into 10⁻⁻3, or which can be written as 5 into 10⁻⁻4. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पॉइसन रेशियो. अभी थर्ड क्वांटिटी क्या है, सेकंड क्वांटिटी पॉइसन रेशियो. तो पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन डायरेक्ट दिया है, इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. लैटरल स्ट्रेन 1.455 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻4. तो 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कट हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू दिस विल बी 0.2 5 9 जा 45 5 1 जा 291. 0.291 is the value of sigma which is less than 0.5. अंडरस्टैंड. सो आंसर इज करेक्ट. अगर आपका आंसर गलती से 2.91 आ रहा है, इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि पॉइसन रेशियो 0.5 से ऊपर जाना नहीं चाहिए. ओके, इतना याद रखना है. तो ये हमेशा 0.5 से नीचे आएगा. अगर गलती से आपका 2.91 आ रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके, तो मतलब कुछ तो कैलकुलेशन रॉन्ग है, ऐसा एज्यूम करने का. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज क्वेश्चन नंबर 5 6 टेक्स्ट बुक कंसोल्ट पेज नंबर 113. आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. अ सॉलिड मेटल स्पीयर ऑफ वॉल्यूम 0.31 मीटर क्यूब इज ड्रॉप इन एन ओशन. एक बॉल डाल दिया उसको, मेटालिक स्पीयर, वेयर वाटर प्रेशर इज दिस मच dp एंड कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मेटल इज दिस मच. ओके, तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है ले लेते. तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, given the original volume of the sphere, metallic sphere, V is equal to 0.31 मीटर क्यूब. ऑलरेडी दिस इज इन SI यूनिट, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. देन द वाटर प्रेशर दिया है dp इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन चेंज इन वॉल्यूम उन्होंने पूछा है, बल्क मॉड्यूलस दिया है, k इज गिवन that is 6.1 10⁻10 Newton per meter square. And what they asked to find, change in volume. To find dV,
We know the formula for bulk modulus. K is equal to, what is the formula for K? This is dV, V upon dV. So dV into dP upon, sorry, V into dP आएगा. This is V into dP upon dV. Okay, that is volume stress upon volume strain. Volume stress is pressure, volume strain is dV by V, तो V ऊपर जाएगा. ओके, लेकिन यहाँ पे K दिया है, तो हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है. तो dV इज इक्वल टू V इंटू dP अपॉन K. हमेशा याद रखना, जो भी क्वांटिटी निकालनी है उसको पहले सब्जेक्ट बनाओ. तो हमको dV निकालना है क्योंकि K दिया है, dV निकालना है, उसको K को सब्जेक्ट बना दिया एंड जस्ट राइट दिस एक्सप्रेशन. अभी सब्स्टिट्यूट करना है आपको. ओके, टेक केयर दैट कि सब्स्टिट्यूट करते समय वेदर द गिवन क्वांटिटीज आर इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स और नॉट. राइट, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो सब्स्टिट्यूट करने के पहले आपको इंश्योर करना है कि सभी क्वांटिटी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में है क्या नहीं. अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो. तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम आएगा dV इज इक्वल टू, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है 0.31 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्रेशर दिया है 2 इंटू 10⁷ डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस दिया है 6.1 इंटू 10⁻10. दिस कैन बी रिटर्न एज, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 0.62 डिवाइड बाय 6.1 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10. तो इसको प्रॉपरली कर लेते. 62/610. जितने डिजिट ये डेसिमल जितने डिजिट शिफ्ट किया है न्यूमरेटर पे, उतने डिजिट यहाँ पे भी शिफ्ट करना है. ओके, 1 2 तो यहाँ पे आएगा, तो 610 आएगा यहाँ पे. टू मेक द डिनोमिनेटर, सॉरी टू मेक द न्यूमरेटर इनटू होल नंबर. ओके, तो डिनोमिनेटर को उतने डिजिट शिफ्ट करना है. राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 61 इंटू 10⁻1 और ये आएगा 10⁻−3. अभी ये वापस ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा. तो 62/61 इंटू 10⁻⁻4. अभी ये ऑलमोस्ट 1 आता है. दिस इज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग. ओके, सो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लूँगा. चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब. दिस इज द आंसर. Okay, so just take a screenshot.